ધર્મગુરુ સદગુરુ શ્રી સાને દાદાના ચરણોમાં મારા સાક્ષાત દંડવત પ્રણામ તેમજ વિશ્વવંદન્ય આપણા વહાલા ગુરુદેવ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાના ચરણોમાં મારા અનંત કોટી પ્રણામ। આજના ગુરુવારની શરૂઆત આપણે પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાના સ્વાગતથી કરીશું। આજનો ભંડારો પ્રજોતભાઈ હરીશચંદ્રભાઈ કર્ણિક તરફથી છે, જે વાપી ગામના છે। પ્રજોતભાઈ હરીશચંદ્રભાઈ ફેમિલીને હું વિનંતી કરીશ કે સ્વાગત કરવા માટે સ્ટેજ પર પધારે। જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લેશું। ત્યારબાદ ઉધના સત્સંગ મંડળને નમ્ર વિનંતી છે કે સ્ટેજ પર પધારી પૂજ્ય ગુરુદેવનું સ્વાગત કરે। ઉધના સત્સંગ મંડળ છેલ્લા 19 વર્ષથી વર્ષના છેલ્લા ગુરુવારે સત્સંગ માટે આવે છે અને નોન સ્ટોપ 19 વર્ષથી આવી જ રીતે આશ્રમની અંદર આવીને ખૂબ જ સુંદર રીતે ભજન સત્સંગ કરે છે। અત્યારે જ્યારે ભજન ગવાતા હતા ત્યારે આ જે નાનું બાળક છે એ પણ ખૂબ જ સુંદર રીતે ભજન ગાતું હતું। એના પરથી આપણે કહી શકીએ કે પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાના સંસ્કાર દરેક નાના બાળકોથી લઈને વડીલો સુધી ઉતર્યા છે। હવે બીજી કેટલીક અગત્યની જાહેરાતો જોઈ લઈએ। શ્રી શાકંભરી નવરાત્રિ આવી રહી છે। 30 ડિસેમ્બર એટલે કે આવતીકાલથી શાકંભરી નવરાત્રાની શરૂઆત થાય છે અને 6 જાન્યુઆરી 2023 શુક્રવારના દિને સમાપન થાય છે। આ વચ્ચે 5 જાન્યુઆરી 2023નો ગુરુવાર આવે છે। આ ગુરુવારે આશ્રમની અંદર દર વર્ષની જેમ મહાભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આ ભંડારામાં તમે પોતાના ઘરેથી શાકભાજી પણ યોગદાનમાં આપી શકો છો। શાકભાજી આપવા માટે ગુરુવારના આગલા દિવસે એટલે કે બુધવારે સવારે 7 વાગ્યાથી રાતના 9 વાગ્યા સુધીમાં તમારે દરેકે શાકભાજી આશ્રમમાં પહોંચાડી દેવી। ત્યારબાદ આ ભંડારાની અંદર કોઈએ આર્થિક યોગદાન નોંધાવવું હોય તો તે પણ સ્વીકાર્ય છે। ઓફિસના કાઉન્ટર પર તમે યોગદાન નોંધાવી શકો છો। ત્યારબાદ બીજું એક મકર સંક્રાંતિ આવી રહી છે। મકર સંક્રાંતિમાં દર વખતે પૂજ્યશ્રી આહવાના અંતરિયાળ ડાંગ વિસ્તારમાં નાના બાળકોને પતંગ, ફિરકી અને તલના લાડુનું વિતરણ કરે છે। તો આ યજ્ઞમાં પણ તમે આર્થિક યોગદાન નોંધાવી શકો છો। યોગદાન નોંધાવવા માટે ઓફિસના કાઉન્ટર ટ્રસ્ટીઓશ્રીને તમે નોંધાવી શકો છો। બીજું એક અત્યારે સોશિયલ મીડિયાની અંદર એક ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે, જેના માટે એક વખત જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવી લેશું। પહેલાં તાળીઓ પડાવી લાવું। એ ટ્રેન્ડ છે 31 ડિસેમ્બર ક્રોધ સે વિરોધનું કેમ્પેન। પૂજ્યશ્રીના માર્ગદર્શનથી આ કેમ્પેન ખૂબ જ જોરશોરથી ચાલી રહ્યું છે અને દાદાશ્રીના દાદા કી સેનાના યુવાનો 750થી વધારે યુવાનો ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં જઈને 31 ડિસેમ્બરના વિકૃતિરૂપી પુતળાનું દહન કરીને ઠેર ઠેર જનજાગૃતિનું કાર્ય કરી રહ્યા છે। તો આવા સમયમાં પણ પૂજ્યશ્રી છોટે દાદા જેવા સંતો આપણને મળ્યા છે અને માર્ગદર્શન બતાવી રહ્યા છે। તો આના માટે પૂજ્યશ્રી છોટે દાદાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। બીજી એક ખુશખબરી, આના માટે પણ બધાએ તાળીઓ પાડવી તો પડશે જ। એ ખુશખબરી છે આવતા અઠવાડિયે નવનાથ ધામનું સુપ્રસિદ્ધ એક કેલેન્ડર છે, શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ કેલેન્ડર, કે જે આવતા અઠવાડિયે પૂજ્યશ્રી છોટે દાદાના હાથોથી અનાવરણ થવા જઈ રહ્યું છે। એક વખત જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ। આપણા નવનાથ ધામનું પોતાનું કેલેન્ડર, જેમાં પૂજ્યશ્રીના છોટે દાદાના ફોટા, સાને દાદાના ફોટા અને વિચાર ગંગા લખેલી હોય છે। તો આ કેલેન્ડર તમે આવતા અઠવાડિયાથી અનાવરણ થયા પછી આશ્રમથી મેળવી શકો છો। બીજું કે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનું લાવાજમ કોઈએ ભરવાનું બાકી હોય,
રિન્યૂ કરવાનું બાકી હોય, છેલ્લો મહિનો છે, તો વહેલી તકે તમે નોંધાવી દેજો. હવે આજના પાવન દિને પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે એમની પાવન વાણી આપણને પ્રાસન કરાવે. જય અવધૂત. પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણ ઉદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. शांति शांति शांति. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सदगुरुदेव की जय. नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलख निरंजन. हम सबके हृदय में शक्ति स्वरूप में विराजमान, हमारे जीवन के सामर्थ्य स्वरूप में विराजमान ऐसे हमारे सद्गुरु श्री सानेनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन. साथ साथ जिन्होंने अपने जीवन में धर्म को ही सत्य का मार्ग समझा, अपने शब्दों से हिंदुस्तान के वीरों के हृदय में धर्म की अग्नि जलाई और जो सदा धर्म रक्षा के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, ऐसे सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में उनकी 356वीं जन्म जयंती के अवसर पर मेरे कोटि कोटि नमन. साथ साथ जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन कर रहे हैं और जो नाथ भक्त नाथ दृष्टि हॉल में उपस्थित रहते हुए आज की विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथपंथी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश. भागवत गीता ने हमें यह उपदेश दिया है कि जब जब धर्म को हानि होती है, अधर्म का साम्राज्य जब जब फैलने लगता है, तब तब मैं स्वयं स्वरूप धारण करते हुए जन्म लेता हूं और जन्म लेने के बाद पुनः धर्म की स्थापना करता हूं, सज्जनों का रक्षण करता हूं और पूरी मानव संस्कृति को मानव धर्म का पाठ, आत्मधर्म का पाठ मैं समझाता हूं. आज से 5000-7000 साल पहले हमारी भागवत गीता ने यह कथन गाया था और यह कथन जिसने कहा उसको हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कि जिन्होंने एक धर्म घोषणा के रूप में यह कथन अर्जुन को तो कहा, लेकिन अर्जुन के साथ साथ पूरे विश्व को उन्होंने कहा. तात्पर्य यही था कि धर्म की रक्षा हो और धर्म की रक्षा करते करते अगर अधर्म का नाश करना पड़े तो वो नाश वो भी सत्य का ही आचरण है.
यानी यह उद्घोषणा के केंद्र बिंदु में केवल और केवल धर्म था कि धर्म की स्थापना करना, धर्म का रक्षण करना, और जिनके भीतर में धर्म जागृत है, जिन्होंने अपने आचरण से धर्म को जागृत रखा है, ऐसे सज्जनों का परित्राण करना, यानी धर्म के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो करना, लेकिन धर्म को जागृत रखना, धर्म का रक्षण करना और धर्म का प्रचार करना, यही मुख्य केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण के अपने जीवन में था। और जो उन्होंने कहा उसी प्रकार एक एक अवतार होते गए और धर्म का संवर्धन होता गया। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जो धर्म स्थापना के हेतु होते हैं, एक बार भगवान ने उसे स्थापित कर दिए, लेकिन बार बार उन हेतु को जब जब क्षति होती है तो भगवान प्रत्यक्ष न आते हुए परोक्ष रूप से भी अपना प्रगटीकरण ऐसे दिव्य आत्माओं के शरीर में कर देते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि निराकार हेतुश्च प्रेरणाम कर्ता मेरीश्वरम, कि जो निराकार जो मेरे हेतु है उसकी जो प्रेरणा है वो प्रेरणा किसी न किसी के भीतर में देता हूं। ये सब मेरे निराकार हेतु है। और जहां मेरे निराकार हेतु की प्रेरणा मुझे देनी है, कर्ता वनीश्वरम, कि ऐसी प्रेरणा देने वाला मैं किसी न किसी को मैं प्रेरणा देता हूं। और यह प्रेरणा मैं किसे देता हूं? यह प्रेरणा मैं शरीरधारियों को देता हूं। और गतम संचालन तथा, कि ऐसी शरीरधारियों को मैं ये प्रेरणा देते हुए मैं धर्म के रक्षण का संचालन किसी न किसी रूप में मैं करता हूं। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान राम मनुष्य अवतार लेके जन्मे। क्यों जन्मे? धर्म की रक्षा के लिए, धर्म का संवर्धन करने के लिए, साधुओं का परित्राण करने के लिए और असाधुओं का विनाश करने के लिए। तो भगवान प्रत्यक्ष जन्मे हैं। लेकिन भगवान भले प्रत्यक्ष जन्मते हो, फिर भी धर्म के संरक्षण के लिए उन्हें मानवधारियों की जरूरत पड़ती है, उन्हें पशुधारियों की जरूरत पड़ती है। और जब भगवान राम जन्मे तो भगवान ने साथ में हनुमान जी को भी लिया। ये हनुमान जी कौन थे? तो जब भगवान प्रत्यक्ष जन्म लेते हैं तो देवता नया शरीर धारण करके उनके साथ जन्म लेते हैं। तो भगवान राम जन्मे तो राम के साथ हनुमान, सुग्रीव, अंगद, मारीच, विभीषण, लक्ष्मण, माता सीता, ये सब ने भी जन्म लिया। तो धर्म को रक्षण करने के लिए भगवान आते हैं, लेकिन जो शरीरधारी है और ऐसे दिव्य जो आत्मा है उनको भी वो प्रेरणा देते हैं कि आप भी मेरे साथ ये कार्य में जुड़ जाइए, और संयुक्त रूप से जब ये कार्य होगा तभी धर्म लाखों लाखों साल तक सुरक्षित रहेगा। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो कंस के सामने लड़ने के लिए जो ग्वाल थे उनको प्रेरणा दी गई। कंस का वध हुआ, धर्म युद्ध करने के लिए पांडवों को प्रेरणा दी गई, द्रौपदी को प्रेरणा दी गई। भगवान प्रत्यक्ष थे, लेकिन ये जितने भी शरीरधारी थे उनमें अपरोक्ष रूप से उन्होंने प्रेरणा दी। गति संचालन तथा, कि मेरा संचालन करने के लिए मैं उन्हें प्रेरणा देता हूं, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, संयुक्त रूप से यह प्रयास होता है।
और भगवान ने इन शरीरधारियों को जब प्रेरणा दी तब अधर्म का नाश हुआ और धर्म का संवर्धन हुआ। उसी प्रकार से अब देखिए परशुराम, तो परशुराम के समय में भी परशुराम ने शरीरधारियों को प्रेरणा दी और शास्त्रों का रक्षण किया। तो संभवामी युगे युगे किसी न किसी रूप से भगवान आते हैं और किसी न किसी को प्रेरणा देते हैं। लेकिन जैसे हमारा आत्मा होता है, ये आत्मा के संरक्षण के लिए शरीर की रचना हो जाती है और शरीर का रक्षण जब होता है तभी आत्मा सुरक्षित रहता है, 100 साल तक इस देह में रह सकता है। इसीलिए मन की रचना की गई है कि मन के द्वारा शरीर का संचालन और शरीर के संचालन के द्वारा आत्मा का संरक्षण। ठीक उसी प्रकार सबके भीतर में मानव धर्म को जागृत रखने के लिए भगवान ऐसी दिव्य विभूति जिन्होंने शरीर लेके जन्म लिया है उन्हें प्रेरणा देते हैं। और ऐसी प्रेरणा मैं तो मानता हूं संभवामी युगे युगे नहीं, संभवामी क्षणे क्षणे, हर क्षण क्षण पे ऐसी प्रेरणा किसी न किसी शरीरधारियों को प्राप्त हो जाती है। आज हम धर्म के साथ जीते हैं, धर्म का पालन करते हैं, धर्म के साथ ही मरते हैं और धर्म के साथ ही अपना सम्मान हम समझते हैं। इसलिए हमारे जीवन के साथ साथ धर्म का महत्व है। अगर धर्म नहीं है तो मानव नहीं, और मानव नहीं है तो धर्म भी कैसे होगा। इसलिए मानव की मानवता धर्म से होती है और एक ही धर्म है, मानव धर्म। मानव धर्म के भीतर है आत्मधर्म, और आत्मधर्म किसका आचरण करता है? सत्य धर्म का आचरण। और ऐसे ही सत्य धर्म का आचरण करने के लिए, मानवता के धर्म को सुरक्षित रखने के लिए आज से 356 साल पहले एक विभूति ने यह सृष्टि पर जन्म लिया और वह मानव देहधारी विभूति थी गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1666 में जन्म लिया तेग बहादुर जी के घर में और माता गुजरी के कोख से। तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे। उनके घर में गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया। वैसे तो देखा जाए तो सिख धर्म की स्थापना 1500 सदी से हुई है, 15वीं सदी से हुई है। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी और सिख धर्म के सिद्धांत थे एकेश्वरवाद, वाही गुरु जी को मानना। और वाही गुरु जी का अर्थ होता है, वाही का अर्थ होता है अद्भुत। ये ऐसा देवता है, ऐसा परमेश्वर है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह ऐसी दैविक शक्ति है जिसको हम समझ नहीं सकते। और यह ऐसा अद्भुत ईश्वर है जिसने ऐसी सृष्टि बनाई है जिसे हम सोच नहीं सकते। इसलिए एकेश्वरवाद, एकांश एकेश्वरवाद, कि हम उसी ईश्वर को मानते हैं और वो ईश्वर वाही गुरु जी अद्भुत है। ऐसे निराकार ईश्वर को हम मानते हैं। तो सिख धर्म की स्थापना हुई। सिख धर्म हिंदू धर्म से ही उद्भव हुआ एक धर्म है। गुरु नानक देव जी ने जब उसकी स्थापना की तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि कीर्तन कर्म करो, नाम जपो और अपने पास जो भी है उसे बांटो, प्रेम को बांटो, ज्ञान को बांटो, धन को बांटो, जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है उसको बांटो।
लेकिन कर्म करो और नाम जपो। इस सिद्धांत के ऊपर गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की। वो सिख धर्म के पहले गुरु बने। लेकिन हमें पता है कि जहां सूरज उगता है वहां अंधेरा आ जाता है, कुछ शुभ होता है वहां अशुभ कुछ हो जाता है। वैसे हमारी ये सनातन धरा के ऊपर नए नए संप्रदाय स्थापन हुए, लेकिन यह धर्म की ज्योत को बुझाने के लिए अधर्मी भी आक्रमण करते रहे। और उस समय पे अधर्मी थे मुगल। जो भी मुगल थे, जब वो हिंदुस्तान में आए तब से उनका पहला एक ही काम था कि सभी को मुसलमान बना देना, जितने भी मंदिर है उसे तोड़ देना। जहां जहां मंदिर टूटते थे वहां वहां मस्जिद बनती थी। जिस मंदिर को तोड़ा नहीं जाता था उसी मंदिर के ऊपर मस्जिद बन जाती थी। जितने भी हमारे देवता थे उन देवताओं को जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता था और वहां वहां मस्जिदों की स्थापना होती थी। तो मुगल जो शासक थे उनके दो काम थे, एक वैभव को भोगना और दूसरा काम था अपने धर्म को दूसरों के ऊपर थोपना। और जो उनके धर्म का स्वीकार नहीं करता था उसे अत्याचार करते हुए, दमन करते हुए, शोषण करते हुए उनका धर्म परिवर्तन किया जाता था। जो नहीं मानता था उसे मार दिया जाता था। और मौत भी ऐसी होती थी जिस मौत से हमारी रूह कांप जाए, उसे मार दिया जाता था। जो बहन बेटी नहीं मानती थी उसका बलात्कार किया जाता था, उनके घर लूटे जाते थे। लेकिन एक ही काम था कि जितनी भी संपत्ति है अपने शासन में लेना और जितनी भी प्रजा है उनका धर्मांतरण कर देना। तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की। कीर्तन करने वाला ये धर्म था, भजन करने वाला धर्म था, पाठन करने वाला धर्म था। सुमिरन कर ले तू मेरे मना, उम्र बीती हरि नाम बिना। ये गाने वाले गुरु नानक थे। यानी सिख धर्म में सुमिरन का महत्व है। इसलिए आप कहीं भी जाओगे, जहां भी गुरुद्वारा हो तो पूरे दिन कीर्तन होता है, सुमिरन होता है, भजन होता है, नाम जपा जाता है। ये उनकी एक भजनिक परंपरा थी। सुमिरन कर ले तू मेरे मना, उम्र बीती हरि नाम बिना। पंखी पंख बिना, हाथी दंत बिना, नारी पुरुष बिना, पुत्र पिता बिनहीना, वैसे ही पुरुष हरि नाम बिना। ऐसे करते हुए एक कीर्तन के रूप में, भजन के रूप में, पाठन के रूप में एक धर्म की शुरुआत हुई। धीरे 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 मुगलों का अत्याचार बढ़ता गया। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, वजीर खान जैसे मुगल शासक दमन करने लगे। सिख धर्म के पहले गुरु नानक जी बने। उसके बाद अजीत सिंह जी गुरु बने। ऐसे करते 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 छठे गुरु अर्जुन सिंह जी बने। अर्जुन देव जी जब गुरु बने तब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी की रचना करनी शुरू की। और जब से गुरु नानक जी बने थे उसके बाद से ही मुगलों के अत्याचार बढ़े और जितने भी संप्रदाय के, सिख संप्रदाय के जितने भी गुरु परंपरा में गुरु बनते गए उनको दबाव डाला गया कि आप मुसलमान बन जाओ। और जब मुस्लिम नहीं बने तो कहीं ना कहीं उनकी हत्या की गई, चौराहे के ऊपर काट दिया गया, करवट से काटा गया। जो नहीं माने उनको बड़ी डेग में गर्म पानी के अंदर बिठा के जिस प्रकार से सब्जियां बाफी जाती है ऐसे बाफ दिया गया उनको। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए
शरीर की जो चमड़ी थी, कई लोगों की चमड़ियां उखाड़ दी गई और ऐसे ऐसे अत्याचार होने लगे। तब जाके अर्जुन सिंह जी ने उस समय पे गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। उनके छठे गुरु थे। और उसके बाद यह पूरे समुदाय को धर्म के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। और जब उन्हें धर्म के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली, तब सिख समुदाय धर्मांतरण न करे और धर्म के लिए लड़े, ऐसे संस्कार उनके भीतर में डाले गए। जितने गुरु आए उन्होंने अपनी शहीदी इस धर्म के लिए देते गए। और सिख धर्म का तो अर्थ ही है, सिख यानी शिक्षा। ये ऐसा धर्म है, एक अर्थ है शिक्षा, धर्म की रक्षा की शिक्षा, और सिख का दूसरा अर्थ है शिष्य। ये ऐसा धर्म है जहां गुरु परंपरा से पैदा हुआ धर्म। जो गुरु परंपरा, गुरु की आज्ञा मानना, ये शिष्य का कर्तव्य रहता है, उसे कहा जाता है सिख। सिख का अर्थ होता है शिक्षा, धर्म रक्षा की शिक्षा। गुरु ने एक ही आज्ञा दी, धर्म की रक्षा करो। तो इस समुदाय में जितने भी शिष्य आए, वो धर्म रक्षा के लिए अपना बलिदान देते गए। किसी ने अपने लड़के दिए, कोई खुद मरा, अपने परिवार को बलिदान की ओर चढ़ा दिया। लेकिन ऐसा धर्म जो गुरु परंपरा में मानने वाला था। धीरे 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 छठे गुरु के बाद सातवें गुरु, सातवें गुरु के बाद 9वें गुरु आए, गुरु तेग बहादुर जी। और तेग बहादुर जी जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता को भी जब औरंगजेब ने जब पकड़ लिया, तब तेग बहादुर जी ने कहा कि देखो, मुझे पकड़ा गया है और मुझे पता है कि मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना ही कहता हूं कि हिंसा का बदला हिंसा होना चाहिए। मुझे मार रहे हैं, तुम डर मत जाना, और जब तुम बड़े हो जाओगे मेरा बदला लेना, हिंसा का बदला हिंसा होना चाहिए। देखिए आप, हिंसा का बदला अहिंसा नहीं, धर्म रक्षा जब होती है तब धर्म रक्षा के लिए शस्त्र उठने चाहिए, शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठने चाहिए। तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे, फिर भी ये आध्यात्मिक गुरु ने अपने संतान को कहा, धर्म के लिए शस्त्र उठाना। मुझे मार के ये लोग ऐसे समझेंगे कि हमने धर्म को नष्ट कर दिया, लेकिन हिंसा का बदला हिंसा लेना। छोटे से बालक में धर्म के लिए लड़ने के संस्कार डाले गए। जब उनको शहीद कर दिया गया, तब गुरु गोविंद सिंह गुरु गादी के ऊपर बैठे। बहुत कम उम्र थी। गुरु गोविंद सिंह गुरु गादी के ऊपर बैठे। उसके बाद उन्होंने भी अपने धर्म को बचाने के लिए, संप्रदाय को बचाने के लिए, हिंदू सनातन संस्कृति को बचाने के लिए पूरा जीवन मुगलों से वो युद्ध लड़ते रहे। एक समय ऐसा आया कि मुगलों की सत्ता बढ़ी, मुगल हर जगह पे जीतने लगे। गुरु गोविंद सिंह ने सब सोचा कि अब ऐसा समय आया है कि जितने भी शिष्य है वो शिष्य तो रहे, लेकिन सैनिक बन जाए। एक सेना खड़ी करने का समय आया। एक बार आनंदपुर के बाजू में एक पर्वत था। उस पर्वत के ऊपर माता जी का मंदिर था, नैना देवी का। वहां यज्ञ हो रहा था। यज्ञ चालू हुआ। यज्ञ के बाद यज्ञ के पंडित ने कहा कि मां जगदम्बा चंडी का तभी प्रसन्न होगी जब किसी पवित्र व्यक्ति का बलिदान होगा, किसी की बलि चढ़ाई जाएगी, पवित्र व्यक्ति की। तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा, तो पवित्र व्यक्ति आप तो है। उस पंडित को आप है, आपकी बलि चढ़ जाए। पंडित घबराया। पंडित ने कहा, ठीक है, मेरी बलि मैं चढ़ा दूंगा, उसके पहले मुझे स्नान कर लेने दो।
पंडित स्नान करने गया, वापस आया नहीं, वहां से भाग, यज्ञ अधूरा रहा। वहां तंबू बने थे, बीच में चंडी का यज्ञ चालू था। गुरु गोविंद सिंह ने देखा अब यही समय है शिष्य को सैनिक बना देने का। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी तलवार निकाली और जितने भी अपने भक्त थे उनको कहा कि यह यज्ञ तभी सफल होगा जब बलिदान दिया जाएगा। चंडी बलिदान मांगती है, इसमें से कौन ऐसा प्यारा है जो इस धर्म कार्य के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल के घूमने लगे कि कोई है जो धर्म के लिए बलिदान दे। मां बलिदान मांग रही, कोई उठा नहीं। उसमें से उनका एक शिष्य था दयाराम, उसने कहा कि मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे बुलाया, उसे तंबू में लेके गए और वहां जोर से गर्दन के ऊपर तलवार का प्रहार हुआ। मुंह से आवाज नहीं निकली और तंबू के बाहर खून बहने लगा। लोगों ने देखा तो सर काट दिया गया, बलि दे दी गई। वापस गुरु गोविंद सिंह जी बाहर आए कि अभी भी मेरी तलवार कहती है कि बलिदान अभी भी चाहिए, कौन है। तो उसमें एक के बाद एक 5 जो सैनिक थे, 5 शिष्य आए। दयाराम, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोकम सिंह और साहिब सिंह। एक के बाद एक 5 आए, 5 को तंबू में ले जाया गया, गर्दन काटी गई, खून की नदी बहा गई। सब देखते रह गए। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने तंबू से बाहर आते हुए जिस 5 को ले जाया गया था उन 5 को बाहर लाए। सबके गर्दन सही सलामत, सबके सिर सलामत थे। तब लोग पूछने लगे कि ये जो बलि दी गई किसकी दी गई। तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि ये तो तुम्हारी कसौटी थी कि धर्म के लिए बलिदान कौन दे। ये जो 5 प्यारे थे वो तैयार हो गए, तंबू में ले जाया गया, उनका सिर नहीं काटा गया, बकरे का सिर काटा गया था। 5 बकरे का सिर काटा गया, ये खून उसका है। तब सब बोलने लगे कि हमारा बलिदान दे दीजिए, हमारा ले लीजिए। तब गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब तो हर कोई देने के लिए तैयार होगा, लेकिन जब बलिदान मांगा और जिस 5 ने, ये हजारों में से ये 5 खड़े हो गए, ये 5 मेरे प्यारे हैं। ये कसौटी थी कि किसमें कितनी पात्रता है कि गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वो खड़ा हो जाए। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, कौन खड़ा हो जाए ये देखने के लिए एक पात्रता, एक कसौटी थी। और उसके लिए ये 5 खड़े हुए हैं। आज इस 5 ने बताया कि हम बलिदान देने के लिए तैयार है। अब सबको बलिदान देने की तैयारी रखनी होगी। उस समय पे जो गुरु गोविंद सिंह ने उसी समय पे कहा कि वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, कि जो वो ईश्वर है उसी का खालसा है। और खालसा का अर्थ है समर्पण। आज से खालसा संप्रदाय की स्थापना होती है और खालसा संप्रदाय की जहां स्थापना होती है वहां जितने भी शिष्य है वो सैनिक बनेंगे। वहां खालसा संप्रदाय की शुरुआत हुई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत यानी जो सत्य है, अकाल यानी जो नहीं मरने वाला, अकाल पुरुष। तो कौन सच है? अकाल पुरुष परमात्मा, वही सत्य है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और वही ईश्वर के धर्म को टिकाने के लिए एक नई सेना खड़ी होनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ने जो अपनी तलवार में लहू लगा था, वो तलवार को लेके घूमे। बड़े बर्तन में पानी डाला गया, उसमें पतासे डाले गए, उस तलवार को पानी में फिरोया गया और गुरु गोविंद सिंह ने कहा ये जो है ये अमृत है,
मैं मेरे 5 शिष्यों को अमृत पिलाता हूं, मेरे 5 प्यारों को, और 5 को अपने हाथों से अमृत पिलाया कि आज के बाद भले आप शहीद हो जाएंगे, शरीर से जाएंगे, लेकिन ये गुरु का प्रसाद है, आज के बाद आप अमर हो जाएंगे। सबको अमृत पिलाया। अमृत पिलाने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने खुद अमृत पिया और गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा की कि हमारे सिख संप्रदाय में किसी का नाम दयाराम है, किसी का नाम हिम्मत राय है, उसके खुद का नाम गोविंद राय है। आज से खालसा संप्रदाय की स्थापना होती है और आज से हरेक के नाम के पीछे राय या दास नहीं लगाया जाएगा, हरेक के नाम के पीछे आज से सिंह लगाया जाएगा। क्यों सिंह लगाया जाएगा? कि जब धर्म के ऊपर, जब भूंड यानी सुअर, धर्म के ऊपर जब भूंड धर्म को हानि करने लगे, तब उसी भूंड का प्रचार करने के लिए सिंहों की जरूरत होती है। सबके नाम के पीछे दास निकाल दिया गया, राम निकाल दिया गया, सिंह लिख दिया गया। गुरु गोविंद सिंह ने खुद का नाम बदला, उनका नाम था गोविंद राय। गोविंद राय नाम बदल के गोविंद सिंह कर दिया, गुरु गोविंद सिंह। क्यों? धर्म को बचाने के लिए, अधर्मी का संहार करने के लिए सिंह की जरूरत होती है। अब गर्जना होनी चाहिए, और वहीं से गर्जना हुई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी के फतेह। खालसा संप्रदाय स्थापन हुआ। खालसा संप्रदाय में 5 ककार दिए गए, 5 ककार, 5 आभूषण दिए गए दीक्षा के रूप में। उसमें आभूषण के रूप में कंगवी, कच्छा, किरपाल, कड़ू, ये 5 उनके आभूषण दिए गए। केश, कंधा, कृपाण, कड़ा और कच्छ। जितने भी केश है वो केश रखने हैं, मर्यादा के रूप में भी रखने हैं। हमारे संत मुनिजन ऋषि केश रखते थे, तो केश यानी जटा बनानी है। कड़ा रखना है। क्यों रखना है? ईश्वर के प्रतीक के रूप में ये कड़ा रखना है। कंगा रखना है, बालों को सीधा करने के लिए कंगवी होनी चाहिए। कच्छा, ब्रह्मचर्य का नियंत्रण करने के लिए कच्छा यानी लंगोट पहननी चाहिए। और कृपाण, किरपाल, एक कटार रखनी चाहिए। धर्म रक्षा के लिए कटार होनी चाहिए। ये 5 ककार जो धारण करेगा वो खालसा यानी सिख सैनिक कहलाएगा, धर्म का सैनिक कहलाएगा। ये 5 प्रतीक दिए गए। आज भी जो सिख होते हैं उनके पास ये 5 प्रतीक होते हैं, इनका सम्मान माना जाता है। और ये 5 प्रतीक जो है ये धर्म संवर्धन के, धर्म स्थापन के और धर्म रक्षा के ये प्रतीक माने गए। और उसके बाद खालसा संप्रदाय की स्थापना की गई। और जब खालसा संप्रदाय की स्थापना की गई तो जितने भी सिख थे वो तलवार रखने लगे, भाला चलाने लगे। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। तब से वो शुरू हुआ कि अगर धर्म को बचाना है, परिवर्तित नहीं होना है, तो शस्त्र से युद्ध करना होगा। और शस्त्र से युद्ध सिखों ने शुरू किया। कई युद्ध हुए, एक नहीं 5-5 युद्ध हुए। और कई जगह पे उस युद्ध में सिखों को विजय मिली, मुगलों को हार मिली। फिर भी जो मुगल थे उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, और बहुत बड़ा साम्राज्य होने के कारण बार बार धर्म परिवर्तन के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी आध्यात्मिक गुरु थे, धर्म के गुरु थे, फिर भी धर्म रक्षा के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों को आगे रखा और धर्म स्थापना के लिए अपने मूल्यों को उन्होंने बदला। उन्होंने सिख धर्म में सूचना दी। क्या सूचना दी? तो जो खालसा है वो 5 सिद्धांतों का पालन करेंगे। कौन सा पालन? पर स्त्री का त्याग। दूसरा पालन कि कठु मांस नहीं खाना। कठ मांस यानी
कि जब मुसलमान मांस को खाते हैं तो उसको हलाल करते हैं, 2 बार उसके ऊपर छुरा फिरवाया जाता है। तो जो पशु होता है उसको वेदना होती है मन, इसलिए कहा गया कि एक ही बार में घा करना है और पशु मरता है उसका मांस खाना। दूसरा, तंबाकू नहीं खाना है, व्यसन नहीं करना है। देखिए, व्यसन नहीं करना गुरु गोविंद सिंह ने भी बताया कि जितने भी सिख सैनिक है वो व्यसन नहीं खाए, तंबाकू नहीं खाएंगे। अब आप देखिए कि धर्मगुरु का तो कार्य यही होता है कि सबसे पहले अपना भक्त अगर व्यसन करता है तो वो छोड़ दे और कोई नया व्यसन न करे। आज हम जो 31 दिसंबर को क्या कर रहे हैं? व्यसन का विरोध। 31 दिसंबर का अर्थ होता है व्यसन का विरोध। उस दिन कोई दारू नहीं पिए, कोई जुगार नहीं खेले, कोई चरस नहीं करे, कोई गांजा नहीं करे, कोई बीड़ी नहीं पिए, कोई सिगरेट नहीं पिए। हमारा जो कैंपेन चलता है यह भी यही सिद्धांत पे चलता है कि व्यसन से मुक्त हो जाए। जब तक हम व्यसन से मुक्त नहीं होंगे तब तक ध्यान में रखिए हम हमारे धर्म से मजबूत नहीं हो पाएंगे। व्यसन मानस को बदल देता है। व्यसन से हमारा मानस जो भी है वो धृष्ट हो जाता है और व्यसन करने से हमारी आसक्तियां बाकी सब चीजों में बढ़ती है। इसके कारण व्यसन विनाश का कारण हो जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने व्यसन के लिए मना कर दिया कि तंबाकू मत खाइए, कोई व्यसन नहीं करेगा। आज हमारी जो कैंपेन चलती है ये भी व्यसन के विरुद्ध में। और अगर इतना ही समझ लिया जाए तो 31 दिसंबर को नहीं, हमेशा के लिए आप इसको छोड़ दो। ऐसी विभूतियां जन्म लेती है और जो वो जन्म लेती है हमारे मूल्यों, हमारे जितने भी सिद्धांत है मानवता के, उसको उजागर करती है। तो यहां कह दिया गया कि तंबाकू नहीं खाना है और मुस्लिमों के साथ संबंध नहीं रखना। क्यों? संबंध रखेंगे तो धर्म परिवर्तन होगा, जबरन होगा, समझा के होगा, कुछ ना कुछ प्रलोभन दे के होगा, लेकिन धर्म परिवर्तन होगा। उनसे संबंध नहीं रखना है। हमारे इतने इतने धर्मगुरु ने शहीदी दे दी तो उनके साथ क्यों संबंध रखें? यवनों से संबंध नहीं रखना है। तो ऐसे सब सिद्धांत दिए गए और खालसा जब सैनिक बने और वो जब सैनिक बने तब उन्होंने युद्ध किए और मुगलों को युद्ध में हरा दिया गया। और जब युद्ध हुआ, चमकौर का युद्ध हुआ, और चमकौर का जब युद्ध हुआ तो वो युद्ध वजीर खान और गुरु गोविंद सिंह के 43 सैनिकों के बीच में था। वो सैनिक सिरसा नदी पार करते हुए जा रहे थे और मुगलों की सेना थी 10 लाख की सेना। सोचिए, वजीर खान की 10 लाख की सेना और गुरु गोविंद सिंह के पास 40। उन 40 में उनके 4 बेटे में से 2 बेटे थे। वो दोनों बेटे भी उस युद्ध में थे। 4 बेटे थे वैसे तो, और ये 4 थे, उसमें से 2 बड़े थे, 2 छोटे थे। अजीत सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह और जुझार सिंह। अजीत सिंह और जुझार सिंह जो थे 14 और 18 साल के थे। वो युद्ध कर सकते थे। एकाएक मुगलों ने 10 लाख की फौज ने उनके ऊपर चढ़ाई की। अब देखिए धर्म जुनून किसे कहते हैं। उनको घेर लिया गया। जब घेरा गया तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि यही समय है धर्म के लिए शहीद हो जाने का। अब मरना है या तो मारना है और मिटा देना है। सब लोग ने गुरु की आज्ञा को मानी। तब गुरुदेव ने सबके भीतर में एक मंत्र फूंका और वो मंत्र एक गुरु मंत्र साबित हुआ। मंत्र था, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से मैं 1 लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम का। कि मैं तभी गुरु हूं जब मैं चिड़िया से मैं बाज को गिरा दूं और जो गिद्ध है उसको मैं शेर बना दूं। यह गुरु का काम है। मानव से महामानव बने। प्राण प्रतिष्ठा, शक्तिपात दीक्षा। यहां शक्तिपात हो गया। शक्तिपात क्या हुआ? जो 40 थे वो 40 के भीतर में ये मंत्र बोलते हुए शक्ति पैदा कर दी।
कि गिद्धों को मैं शेर बनाऊं, चिड़िया को मैं बाज से लड़ाऊं, 1.25 लाख से मैं एक लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं। मैं तभी गुरु हूं जब मैं एक एक को 1.25 लाख से लड़ा दूंगा। और जब ये मंत्र बोले और मंत्र से जब शक्तिपात हुआ तो जो 40 थे उन 40 ने मिलके मुगलों की आधी सेना को समाप्त कर दिया, आधी सेना को मारा। विचारे 10 लाख ने हमें 40 लड़ी लीधु पण 40 से 7 लाख ने मार्या एम તમને સમજો। હવે આ 40 ની અંદર એક એક માં 1.25 લાખ ને મારવાની શક્તિ કાથી આવી? આનું નામ કહેવાય ગુરુ કૃપા। આ ગુરુ કૃપા અહીંયા ઈશ્વર કૃપા નથી, અહીંયા ભગવાન આવ્યા જ નથી। ગુરુ ગોવિંદ સિંહ ગુરુના વાક્ય છે કે તૂટી પડો, મારો મીટો, જે કરો તે કરો, પૂરા કરી નાખો। અને મંત્ર ફૂંકી દીધો, જેટલા પણ હતા તે બધામાં 1.25 લાખને મારવાનું જોર, 1,000 હાથીનું જોર પેદા થયું। આજ આપણા હિન્દુ ધર્મની તાકાત છે કે જ્યારે ધર્મની ઉપર આવી પડે ત્યારે એક એકની અંદર 1.25 લાખને મારવાની તાકાત આવે। અહીંયા બધા કાલ ભૈરવ ઊભા થાય છે ને, કાલ ભૈરવ, અકાલ ભૈરવ, જલ ભૈરવ, થલ ભૈરવ, બાલ ભૈરવ। આ ચંડી માતાનું ને જે બલિદાન આપ્યું છે એ બલિદાનમાંથી આ બધા ભૈરવ પેદા થઈ ગયા છે। આ सिख धर्म हिंदू में उभो थेलो धर्म है। अने पहलो ज कीधुं ने कि चंडी बलिदान मांगती है, अने बलिदान देने के बाद जो धर्म हुआ खालसा, उसमें से ये 40 जो थे, ये 40 के 40 भैरव पैदा हुए, विराट रूप लिया। और विराट रूप लेने के बाद सैनिकों के ऊपर टूट पड़े। शायद उस समय पे जो दृश्य होगा तो कोई सब रक्त से रंजित हुए होंगे, सबकी कटार लाल हुई होगी, कितने घाव सहे होंगे। और 40 ने एक एक 1.25 लाख से लड़े, आधी के ऊपर की सेना को समाप्त कर दिया। आप सोचिए, लेकिन जहां 40 लड़े और आधी के ऊपर की सेना को मारा, दुख की बात एक थी, 40 के 40 शहीद हो गए, 40 शहीद हुए। गुरु गोविंद सिंह वहां से बच के निकले, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह मूल व्यक्ति थे। लड़ते हुए वो निकलने लगे। उनके 2 बेटे छोटे उनके साथ थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, एक 9 साल का और 6 साल का। उनको लेते हुए वो निकले। इस लड़ाई में अजीत सिंह और जुझार सिंह ये दोनों शहीद हो गए। दोनों शहीद हुए, लाशें बिछी थी। शाम का समय था। देखिए अब कि मुगल जो थे वो लाश उठाते उठाते थके, लाश वहां ही छोड़ दी। गुरु गोविंद सिंह के साथ 2 शिष्य थे, 2 बेटे थे। उन्होंने अपने 40 को ढूंढना शुरू किया। अंधेरा हुआ था, किसी को पता नहीं था गोविंद सिंह यहाँ, क्योंकि 7-8 लाख की लाशें पड़ी थी। सबको उठा उठा के देखते थे। 40 को अलग किया। उसमें उनके दोनों बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह, एक 18 का था, एक 14 का था। दोनों वहां पड़े थे। गुरु गोविंद सिंह ने दोनों को देखा और गुरु गोविंद सिंह ने कहा, केरा तेरा तुझको सौंप के क्या जाएगा मोर, कि जो तेरे थे उसको मैंने तुझे दे दिया, उसमें मेरा क्या गया। ये धर्म में जो 40 का बलिदान हुआ, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, मेरे पुत्रों का भी बलिदान हुआ। तेरा तुझको सौंप के क्या जाएगा मोर, मैं तुमको सौंपता हूं। और मुझे गर्व है कि मेरे जो 2 बेटे हैं वो मेरी राह के ऊपर निकले। वहां से उठे, उनका संस्कार किया गया, निकल पड़े। निकलते निकलते सेना को पता चला कि अभी भी गोविंद सिंह जी है। वापस सेना ने ढूंढना चालू किया। बदकिस्मती यह रही कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे जो थे, फतेह सिंह और जोरावर, ये दोनों उनसे बिछड़ गए। गुरु गोविंद सिंह की माता थी गुजरी, वो भी उन बच्चों को साथ में लेके अलग हो गई। घूमते घूमते, भागते 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 दोनों बेटे अलग हुए। ये दोनों बेटे उसी समय पे उनके ही घर के जो रसोइये थे,
उनके घर में जाके रहे। उनके पास थोड़ा धन था माँ के पास, तो उस जो रसोईया था उसकी दानत बिगड़ी और उसने जाके सरदार को बता दिया, तो इनको पकड़ लिया गया। जो दरेक जगह पर आवा होय ज। આપણે કહે ને કે બેઈમાન, તો આવા બેઈમાન દરેક જગ્યા પર જ હોય। બે નાના છોકરા અને ગુરુ ગોવિંદ સિંહની માં એ પકડાઈ અને પેલાને સોનામોર મળી। હવે આ હિન્દુ જ હતો ને, એ લોકોને પકડાવાળો કોણ હતો? આપણો જ માણસ હતો। એટલે આવું થાય જ છે, આપણા ધર્મમાં પણ એવા નીકળે, આપણા ઘરમાં બે ત્રણ એવા નીકળે। કોઈ જગ્યા પર એવું હોય નહીં કે જ્યાં બધા જ ઈમાનદાર હોય। દરેક જગ્યા પર कहीं ना कहीं आऊ हो। पकड़ाई गया, पकड़ लिए गए। वजीर खान ने उन्हें अपने किले में बुलाया। किले में बुला के उनको कहा, वो दोनों लड़कों को, एक 9 साल का था, दूसरा 6 साल का था, उनको कहा गया कि धर्म परिवर्तन करो, मुस्लिम बन जाओ। दोनों लड़के ने कहा कि मुस्लिम नहीं बनेंगे, मार दिए जाओगे, मार दीजिए, मुस्लिम नहीं बनेंगे। दोनों को जिंदा दीवार में, जिंदा चढ़ने का, दीवार में दफन कर देने का हुक्म किया गया। अब देखिए, छोटे बच्चे दोनों को साथ में, एक 9 साल का था, एक 6 साल का था, फतेह सिंह और जोरावर। जोरावर शायद बड़ा था, फतेह सिंह छोटा था। दोनों को साथ साथ दीवार में चढ़ना चालू कर दिया। एक जो बड़ा था उसकी हाइट ज्यादा थी, जो छोटा था वो थोड़ा हाइट में कम था। अब चढ़ते चढ़ते जब पैर तक आए, तो देखिए आप खड़े रहेंगे तो घुटना हमारा बाहर रहेगा, तो चढ़ते चढ़ते जब पैर तक आए तो एक घुटना बाहर रहता था। राजा ने क्या किया, बादशाह ने ये घुटने को निकाल दिया, छीन दिया उसको। फिर भी ये दोनों ने मुंह से उफ नहीं किया, मन में जप चालू रहा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ये घुटने निकाल दिए गए, ढकनी उसकी निकाल दी गई। चढ़ना चालू हुआ, गर्दन तक आए। एक छोटा था, एक बड़ा था। जो बड़ा था वो रोने लगा। तब वहां जो था उस सरदार ने पूछा, क्यों रोते हो? मरने के डर से रोते हो? अभी अभी भी समय है, धर्म परिवर्तन करो, मुस्लिम बन जाओ। उसने कहा कि मैं मरने के डर से नहीं रोता हूं, मुझे रोना एक ही बात पे आता है। क्या? मुझे रोना इसीलिए आता है कि मैं आया था पहले, ये आया था बाद में। मेरी ऊंचाई ज्यादा है तो मैं बाद में, मुझे दीवार में दफन कर दिया जाएगा। उसके इसकी ऊंचाई कम है, ये पहले दफन शहीद हो जाएगा। बस मुझे रोना एक ही बात का आता है, मरने का रोना नहीं है, मरने से नहीं डरते। मैं आया था पहले, मुझे पहले जाना था। मैं आया था पहले, लेकिन मुझसे पहले ये जा रहा है। मेरा अधिकार ये छीन के जा रहा है। उस चीज का मुझे दुख है, इसलिए मैं रो रहा हूं कि मेरे सामने मेरा छोटा भाई पहले मर रहा है, पहले मुझे मरना था। मैं पहले जन्मा तो मैं मरना चाहिए था। देखिए आप कि मरने के लिए, शहीद होने के लिए मन में एक भावना कि धर्म नहीं बदलेंगे, मर जाएंगे। मैं पहले नहीं मरने वाला, उसका दुख। धीरे धीरे दोनों को दीवार में दफन कर दिया गया। एक 6 साल का था, एक 9 साल का था। उनकी जो दादी थी गुरु गोविंद सिंह की मां, उनको कहीं और जगह पे ले जाया गया और किले से फेंक दिया गया, उसको भी मार दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के 4 लड़के थे। ये चारों के चारों जो लड़के थे, चारों शहीद हो गए। अब देखिए, ये ऐसी विभूति जिसने अपने सर्वस्व का बलिदान दे दिया। छोटे छोटे बच्चे, उनको भी खालसा सैनिक बनाया। उम्र नहीं देखी, उनके अंदर की जो भावना थी, उनके अंदर का जो जुनून था और जो संस्कार थे, उसे देख के धर्म के लिए उनका बलिदान दे दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के को बाद में पता चला,
फिर भी गोविंद सिंह जी लड़ते रहे। उनके जो पंच प्यारे थे उसमें से ही किसी ने वजीर खान को भी मारा। लड़ते गए लड़ते गए, और एक समय ऐसा आया 1708, जहां गुरु गोविंद सिंह अपने तंबू में थे, वहां ही किसी पठान ने आके उनकी छाती में छुरा गोचा। छाती में छुरा गोचा, लेकिन अपने हाथ में जो किरपाल थी उस किरपाल से उसको पठान को मार दिया, लेकिन छाती में छुरा गोचा था। तो गुरु गोविंद सिंह जी नाम लेते लेते शहीद हुए, और तब गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र थी 41 साल। अब आप देखिए, सिख धर्म की जो स्थापना हुई वो स्थापना सुमिरन थी, लेकिन सुमिरन करते करते अंत काले मामे व स्मरण मुक्तवा कले रवा। सुमिरन करते करते अपने धर्म के लिए जिसने मरण को ग्रहण कर लिया, ऐसा समुदाय ये सिख समुदाय, कि सुमिरन करने के लिए धर्म की स्थापना हुई, लेकिन धर्म ने कार्य किया धर्म की रक्षा का। और इसीलिए तब गुरु गोविंद सिंह ने जब जाते समय कहा कि मैं 10वां गुरु हूं, ये 10वीं ज्योत गुरु नानक जी पहली ज्योत, वही गुरु की 10वीं ज्योत गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो मैं 10वीं ज्योत, मैं 10वां गुरु हूं, लेकिन मैं आज से सबको कहता हूं कि आगे से कोई गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहिब यही 11वें गुरु के रूप में स्थापित हुए। तब से सिख समुदाय में कोई गुरु परंपरा, यानी गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु रहे, 10 ज्योत हुई, और बाद में ये 10 ज्योत थी ग्रंथ साहिब के शब्दों के रूप में, गुरु बानी के रूप में समा गई। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब के बाद गुरु ग्रंथ साहिब यही गुरु है, इन्हें ही गुरु मानना है, हमारी सब ज्योत इसमें ही समाई हुई है, और जितनी भी मेरी वाणी है वो सबको मार्गदर्शन देगी, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु के रूप में देगी। तब से ग्रंथ को गुरु माना गया। यह विश्व का एक ही ऐसा संप्रदाय है जो ग्रंथ को गुरु मानता है, और ग्रंथ को गुरु का दर्जा दिया गया, यानी जहां जहां मंदिर बने उसे गुरुद्वारा बोला गया। कि गुरुद्वारा का अर्थ क्या होता है? जहां गुरु रहते हैं उसका दरबार। तो गुरुद्वारा में क्या होता है? गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब रखा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को उसकी पूजा की जाती है, उसको पंखा डाला जाता है, उसके ही दर्शन किए जाते हैं। और जब गुरुद्वारा में जाए तो सबसे पहले हाथ पैर धो के जाया जाता है। वहां व्यवस्था होती है हाथ पैर धोने की। माथे के ऊपर एक सम्मान के रूप में कपड़ा डाला जाता है। कोई भी हो, अगर पुरुष हो फिर भी पाटलून पहन के नहीं जा सकता, अगर स्त्री हो वो भी कम कपड़ा पहन के नहीं जा सकती, उसे ड्रेस में ही जाना होता है। ये उसकी मर्यादा है। अगर उस मर्यादा का, यानी कोई भी मर्यादा का कोई भी उल्लंघन करे तो उसे भी लंगर में या कहीं ना कहीं सेवा के रूप में उसे कार्य करने के लिए उसे दंड दिया जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति थे शायद ज्ञानी जेल सिंह जी, शायद जब ऐसा हुआ था कि कुछ उनसे गलती हुई थी, तो वो सिख हो राष्ट्रपति थे, फिर भी उनको पनिश्ड किया गया था। और पनिशमेंट वही थी कि जो आए उनके जो जूते थे उनको उठा के रखना। राष्ट्रपति ने भी ये दंड भुगता था। क्यों? बोले मैं राष्ट्रपति हूं, लेकिन ग्रंथ साहिब के सामने मैं शिष्य हूं। હવે તમે જુઓ કે કેટલી મોટી ધર્મની મર્યાદા, કે રાષ્ટ્રપતિ હોઉં તો બી કંઈ વાંધો નહીં, ભૂલ થઈ ગઈ છે, દંડ થયો છે, શું તો જે આવે ને તેના પગરખા લેવાનો ને સાઈડ પર મૂકો. રાષ્ટ્રપતિએ પણ આ કામ કર્યું છે તે સમયે. હવે આટલી મોટી ગુરુની મર્યાદા, ગુરુ ગ્રંથ સાહેબનું સન્માન, ગુરુની પવિત્રતા, શીખ ગુરુ જે કહે તે કરવું.
तो आप देखिए कि ये पूरे धर्म में गुरु का वाक्य, मंत्र बुलम गुरु वाक्य, और गुरु शब्द के ऊपर ही पूरा संप्रदाय खड़ा रहा। और जहां गुरु होता है वहीं धर्म जागरण होता है, जहां गुरु होता है वहीं बलिदान होता है, और जहां गुरु होते हैं वहीं समर्पण होता है। यानी हमारे सनातन धर्म के मूल में गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरुओं का योगदान है। हमारे सनातन हिंदू के मूल में रामदास स्वामी जैसे ईश्वरीय अवतार का योगदान है। ऐसे तो कितने हैं हमारी संस्कृति में संत गुरु जिन्होंने अपना योगदान, अपना बलिदान हमारे मूल में डाला है। तो तब से गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती है। उसमें नियम है कि जो भी वहां जाते हैं वहां कीर्तन 24 घंटे चालू रहता है। हमारे यहां भी गुरुद्वारा है, 24 घंटे कीर्तन होता है, सुबह से लेकर रात तक कीर्तन चालू रहता है। और जो भी कोई आता है वहां बैठता है, शांति से बैठता है, प्रार्थना करता है, लेकिन वहां नियम है, बात नहीं करनी। गुरु जहां बैठे हैं उससे नीचे बैठना है, गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन करना है, ग्रंथ का दर्शन करना है, गुरुबानी जो होती है उसको सुनना है, बोलना है, बातें नहीं करनी। આપણે અહીંયા ભજન ચાલતો હોય તો આપણે કેટલી વાત કરી। આપણા આશ્રમની અંદર આપણે પગરખા મૂકવાનો હોય તો કોઈ આમ મૂકી જાય, કોઈ તેમ મૂકી જાય। ઘણા બધા તો એવા છે કે પેલા બરમુડા પહેરીને આશ્રમમાં આવી। હવે જુઓ તમે, આ ધર્મ શીખવે છે। આપણે આપણા આશ્રમમાં જઈએ ને તો પેન્ટ પહેરીને આવવાનું કરો, બરમુડા પહેરવાના બંધ કરો। બહેનો પણ આશ્રમમાં આવે ને તો એને પણ હું તો માનું કે જીન્સ નહીં પહેરવો જોઈએ, કપડાં વ્યવસ્થિત પહેરીને આવવું જોઈએ। હમણાં તો કંઈ નહીં, ચાલવા દેવું, તમારી મસ્તી છે, ચર્યા કરો। પણ જે દિવસે દાદાનું મંદિર બનશે ને પછી આ નિયમ લાગુ પાડીશ બધાને માટે કે એ જ વ્યક્તિ મંદિરમાં આવે કે જેણે પૂરા કપડાં પહેર્યા હોય, એ જ વ્યક્તિ મંદિરમાં આવે કે જે પૂરા મર્યાદાની સાથે આવી શકતું। અને મંદિરમાં આવ્યા પછી પણ વાત નહીં કરવાની। આપણે પણ એ નિયમ લાવશું કે કોઈ પણ ચડ્ડું પહેરીને આવે ને તો એની દાખલ જ નહીં થવા દેવાનું। એને આપણે કપડાં દાન કરવાના, લે તારે ભાઈ કપડાથી હું કપડાં આપું। અને કોઈ બેન દીકરી બી પેન્ટ પહેરીને આવે ને તો પછી આપણે એને સાડી આપવાની કે તારા ઘરે તારી પાસે કપડાં પૂરા થઈ ગયા હોય ને તારા ભાઈના કે તારા પતિના પેન્ટ પહેરીને આવી હોય તો એ તારા ઘર પૂરતા રાખ, અહીંયા તને સાડી આપું, સાડી પહેર। આપણે પછી સાડી દાન કરવાનું ચાલુ કરશું, પણ મર્યાદા આપણે રાખવી જોઈએ। આપણા પણ ગુરુદેવનું જ્યારે મંદિર બને ત્યારે આપણે પણ એ જ નિયમ કરવાનો છે, માથા ઉપર બધા કપડું બાંધીને જ પગે લાગવા જવું। પછી અને જે પણ મર્યાદા હોય આજે નહીં પણ તે દિવસે, કેમ કે આપણે આને ગુરુ દરબાર કહીએ છીએ, તો આને ગુરુ દરબાર કહેતા હોય તો પેલું ગુરુદ્વારા થયું પછી। એટલે આ બધા નિયમ ધીમે ધીમે તમારા ઉપર પણ લાગુ થશે અને કરવાના જ છે। અને એ નિયમ નહીં પાડે તો પછી આવો ચપ્પલ ઉચકવાની સજા કરો પછી એ લોકો। પણ આ તો હું એવું કે આપણા અહીંયાની હિન્દુ ધર્મમાં તમે માનો એટલે આ બધી મર્યાદા પાડવી જ જોઈએ। કેમ આપણાથી મંદિરમાં નહીં પડે? હું તો કહું સત્સંગમાં પણ તમે તમારા ઘરે સત્સંગ કરો। આ લોકો જો આજે આવેલા છે, આ બધા कीर्तनના वेश પહેરીને આવેલા છે। आप सब आए हैं यहाँ कीर्तन के कपड़े पहन के आए, माथे पे टोपी है, उनका जब्बा है, लहंगा है, ये मराठी कपड़े, वारकरी पंथी, सब वारकरी पंथी होके अपने अपने घर में पहनते भी होंगे, यहाँ वारकरी बन के आए। क्यों आए? यही धर्म का सम्मान। तो हमें भी वही करना है कि जब हमारे मंदिर में जाए, हमारे गुरुद्वारे में जाए, हमारे आश्रमों में जाए, गुरु के सामने जाए, तो हमें भी मर्यादा रखनी। अगर मर्यादा न रख सको तो ऐसे समझ लेना हम हिंदू नहीं। मैंने सबसे पहले ये गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा, वहां मैं गया हूं 2 से 3 बार गुरुद्वारे में मैं गया हूं, और मैं जहां पढ़ा हूं सब सिख लोगों के लड़कों के साथ में पढ़ा हूं। हमारा जो पूरा क्लास होता था उस क्लास में 50-60 की संख्या होती थी, तो 50-60 की संख्या में 40 तो सिख होते थे। सिख के लड़कों के साथ में पढ़ा हूं, सिख जो लड़कियां हैं उनके साथ में पढ़ा हूं,
15 हम लोग होते थे, बाकी सब सिख होते थे। उनके साथ में बैठ के पढ़ा। हमारी जो पूरी स्कूल थी उसमें 400 स्टूडेंट थे, 400 में से 250 होते थे वो सिख होते थे। आज भी अगर मैं गुरुद्वारे में चला जाऊं तो मुझे नाम से सब लोग पहचानते, नाम से। यहां भी आते हैं तो मुझे नाम से पहचानते, जितने भी अंदर सिख रहते हैं मेरे नाम से मुझे जानते। उनके साथ में पढ़ा हूं और उनमें जो धर्म की मर्यादा है वो मैंने देखी। छोटा छोटा बच्चा हो फिर भी वो कंघी रखेगा, छोटा छोटा बच्चा हो बाल रखेगा, उसके ऊपर पगड़ी पहनेगा, अपने हाथों पे एकाउंट्स, सब बच्चों के हाथ में एकाउंट्स होता है। अभी बीच में एक कोर्ट में एक घटना हुई, 2-3 दिन पहले कोर्ट में घटना हुई, भंडारी भाई कोर्ट में जाते हैं, वहां ही घटना हुई कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। एक सिख था, दूसरा अपने धर्म का था। मारामारी हुई। जज ने सामने बोलो क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया? तो जो सिख था उसने कहा कि जो भी हुआ भले हुआ, मगर मुझे एक ही चीज का दुख है। क्या? कि कहीं और मारता तो चलता था, सिर में मारा, सिर में मारने के बाद मुझे टांके आए तो मेरे बाल निकाल दिए गए, और मेरे टांके लिए गए तो मेरे धर्म का अपमान हुआ, मेरे बाल निकाल दिए गए। उतना मुझे दुख है। अब आप देखिए कि मारामारी जो भी हुई हो, दुख नहीं, दुख इतना है कि मैंने जो केस रखे थे माथे में लगा, इसलिए केस को निकाल दिया गया, मुझे मुंडन करवाना पड़ा इतने भाग में, उसका मुझे दुख है। अब देखिए आप कि उनके अंदर में धर्म के प्रति भावना कितनी। हमने तो हमारे सभी जो हमारे जो धर्म है हमने बाजू पे रखे। हमारे धर्म एक ही दिन के होते हैं, बाकी के दिनों में हम धर्मों को मानते ही नहीं। भागवत गीता होती है, मंदिर में स्थान होना चाहिए। जहां हमारे पेपर होते हैं, हमारे मैगजीन होते हैं, उसमें भगवत गीता हमारी पड़ी होती है। हमारे बच्चे, मैंने नहीं देखा कि मंदिर में पैर पड़ते होंगे। अपना पोयरा मंदिर में जाए खरा, हवरना उठे એટલે આપણે આદત પાડી લેવી કે દીકરા ઉઠીને પહેલો મંદિરમાં પગે લાગજે ના, એને બરાબર નવડાવે, તૈયાર કરે, ડબ્બો આપે અને જવા દે, જા જલ્દી જલ્દી બસ પકડી। પણ તમારો છોકરો તમને જયવદૂત કહે ખરો? તમારો છોકરો તમને પગે લાગીને જાય ખરો? તમારો છોકરો ઘરના મંદિરમાં 2 હાથ જોડે ખરો? સાંજ પડીને મંદિરમાં પગે લાગે ખરો? આપણા છોકરા પાસે આપણે નથી કરાવતા। કેમ? એ તો નાનો એમ કે એને હું આ બધું લેવા દેવા। પેલા 9 ને 6 વર્ષના શહીદ થઈ ગયા ને આપણા નાનાની ઢાઢા થઈ ગયા મોટા। પેલા કોલેજમાં ભણતા થઈ ગયા તો બી ના, મંદિરમાં જાય નહીં। એટલીસ્ટ તમારા ઘરમાં જે મંદિર મૂક્યું છે તેને તો હવારના પગે લાગો। નહીં, એ તો એમ કે કોઈમાં પડે જ નહીં, એમ કે એની મસ્તીમાં જ રહે। પછી ખબર પડે મસ્તી થોડા વખત પછી તમને। આવા મોટા ધર્મના પ્રોગ્રામ થશે ત્યાં નહીં લે, ત્યાં આખું ફેમિલી નહીં જાય, ત્યાં કોઈ બી એક જ જાય। પણ પાર્ટી થતી હોય, લગ્ન થતું હોય તેમાં પાછા બધા જાય। અને લગ્નમાં જો કોઈ એમ લખી દે ખાલી 2 જ જણા, તો પછી ખોટું લાગે। 2 જ કેમ બોલાવ્યા? હા, દો લીખ ગલત લગતા है, 2 જ લખ્યા એમ કે તેમાં આખું બધાને જવાનું છે। પણ સત્સંગ થાય, આપણા મઠમાં કાર્યક્રમ હોય, મંદિરોમાં કાર્યક્રમ હોય, ત્યાં તમે બધાને લઈને ભેગા જાઓ ને, એ નહીં। દરેક માણસે મંદિરમાં જાઓ એટલે એની મર્યાદાનું પાલન હોવું જોઈએ। કપડાથી પણ કરો, તમારા વર્તનથી પણ કરો। गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा में मैं गया हूं। हम यहां कुछ बोले, हम ताली बजाते हैं, गुरुद्वारा में ताली नहीं बजाई जाती, ग्रंथ का अपमान होता है। अगर किसी ने ताली बजाई तो वो कहेंगे ताली मत बजाओ, ग्रंथ है, वो जीवंत रूप है, जीवंत ज्योत, ये पुस्तक नहीं है, ताली मत बजाओ। आम करीने આપણે હાથ હલાવવાના હોય, ગમે એટલે આમાં વાત હલાવે, આભાર આભાર, પણ ત્યાં તાળી નહીં વગાડવા દે। ताली बजाई तो अपमान, बंद करो ताली। अब आप देखिए कितना मान। जब शादी होती है तो लड़का और लड़की गुरुद्वारा में आते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे होते हैं, 4 फेरे फरते हैं, और उसके बाद उसकी शादी मानी जाती है। हमारे बच्चे जब जन्मते हैं तो राशि देखी जाती है, कौन सी राशि में जन्मा है वो अक्षर होता है, उसके ऊपर से नाम पड़ता है। वहां ऐसा नहीं है। जब लड़का है तब एक प्रोग्राम किया जाता है, सब इकट्ठा होते हैं,
और इकट्ठा होने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती, और गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा हो, दर्शन हो जाए, उसके बाद वो ग्रंथ को खोला जाता है, और ग्रंथ को खोलने के बाद पन्ने पे जो पहला अक्षर आता है उसके ऊपर से उसका नाम रखा जाता है। अब देखिए, जो ग्रंथ खोला और उसमें जो पहला अक्षर पन्ने पे आया, जो आया तो जो, सो आया तो सो, क आया तो क, राशि नहीं देखी जाती। गुरु ग्रंथ साहिब में जो नाम अक्षर पहला आता है उससे उसका नाम रख दिया जाता है। अब आप देखिए गुरु ग्रंथ साहिब का कितना मान। हम गुरु भक्त होते हुए भी गुरु का मान नहीं रख सकते, उतना ग्रंथ का मान। हमारे नवनाथ चरित्र का हम मान नहीं रख सकते, हम भगवत गीता का मान नहीं रख सकते, उससे भी ज्यादा मान गुरु ग्रंथ साहिब का होता है। और यही सब ग्रंथ का मान करते हुए, सम्मान देते हुए, गुरुवाणी का हर रोज पाठ करते हुए सिख समुदाय के जितने भी संस्कार है वो धर्म रक्षा के लिए अंदर से एक अग्नि पैदा करते हैं। और ये अग्नि किसने बनाई, ये जोत किसने जलाई? गुरु गोविंद सिंह ने। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अकाल पुरुष को मानने वाले, अकाल तख्त को मानने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के संप्रदाय ने यह धर्म भावना जगाई। और आज सिख धर्म ने जो धर्म के लिए युद्ध लड़े हैं, शायद ही दूसरे किसी ने इतने लड़े होंगे, मगर धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया। अब आप सोचिए, क्या छोटी छोटी बातों पे धर्म परिवर्तन हो जाता है? पैसा नहीं हो એટલે પૈસા આપે એટલે ધર્મ પરિવર્તન, ઘરની અંદર રહેવા માટે મકાન નહીં હોય, મકાન આપે એટલે ધર્મ પરિવર્તન, ખાવાનું નહીં હોય, ખાવાનું આપે એટલે ધર્મ પરિવર્તન। તમે વિસ્તારમાં જાઓ, ડાંગ જાઓ, વિસ્તારમાં જાઓ, આખા આખા ગામડામાં ખાલી 5-5 ઘર હવે હિન્દુના રહી ગયા, બાકી બધા ક્રિશ્ચન બની ગયા છે। ખાલી ધર્મ પરિવર્તન નહીં, ધર્મ ખરીદી છે। કપડા આપો, ધર્મ બદલી કાઢો, પૈસા આપો, ધર્મ બદલી કાઢો, ભણાવી દો તમને, ધર્મ બદલી કાઢો, રહેવાનું કરી આપો, ધર્મ બદલી કાઢો। તમને પૈસાથી તમારો ધર્મ ખરીદે, પરિવર્તન બાજુ પર જવા। અને પરિવર્તન નહીં, પરિવર્તન યા તો કોઈ પણ જાતના દાબ દબાવ વગર પૈસા આપીને તમારો ધર્મ ખરીદી લે। અને આવી રીતના તો કેટલા ધર્મ પરિવર્તન થયા। પણ આ જે બલિદાન થયા છે, બલિદાનને તમે વિચારો કે મરી ગયા પણ ધર્મ પરિવર્તન નથી કરવાનું। તો આપણે સમજવાનું છે કે આપણે પણ કંઈ પણ થાય, જે ધર્મમાં જન્મ છે, મૃત્યુ એ ધર્મમાં જ થવું જોઈએ। આપણે ધર્મ પરિવર્તન નહીં કરવું જોઈએ। અને હું તો એમ માનું છું કે જ્યાં કરાતું હોય ત્યાં ઊભા રહીને એનો બહિષ્કાર કરવો જોઈએ। બહિષ્કારથી પણ નહીં માને તો કોઈ પણ રીતે એને અટકાવવું જોઈએ। અને પછી નહીં માને તો પછી શસ્ત્રનો ઉપયોગ હાથાપાઈ થાય તો વાંધો નહીં, કરવી જોઈએ। હું તો એવું માનું છું। કેમ આપણો ધર્મ સમાપ્ત કરવામાં આવે? મુસ્લિમો ખ્રિશ્ચન બનાવે હિન્દુને, ઘણા મુસ્લિમ બની જાય, મોટે ભાગના મુસ્લિમ આ રીતે જ બને। છોકરીઓ મુસ્લિમ છોકરા સાથે અફેર કરે અને પછી ધીમે રહીને પાછળથી છોકરી મુસ્લિમ થઈ જાય, આખું એનું રૂપ બદલાઈ જાય। છોકરા પણ એવા છે જે મુસ્લિમ છોકરીને પસંદ કરે અને પછી ધીમે ધીમે આખો માર્ગ બદલી કાઢે, ધર્મ બદલી કાઢે। વિચાર કરો તો આપણે કેટલા નબળા છે। હિન્દુ સબળો નથી, હિન્દુ નબળો છે, મનથી નબળો છે। અને જ્યાં હિન્દુ મનથી નબળો છે ત્યાં આપણા હિન્દુ ધર્મનું પરિવર્તન થશે। માટે હું તો દરેકને કહું છું, બધું કરો, ધર્મ પરિવર્તન નહીં કરો। અને જ્યાં જ્યાં ધર્મ પરિવર્તન થતું હોય તો અમને જાણ કરો। આ દાદા કી સેના અમથી ખાલી આ કરવા માટે નથી બનાવી, આગળ આ કામ પણ આવશે દાદા કી સેનાનું, કે જ્યાં ધર્મ પરિવર્તન હશે ત્યાં સેના જશે અને ઊભી રહેશે। એટલે હું પણ જે સેના બનાવીને એ સેનામાં સૈનિક બનાવ્યા છે લડવા માટે, ખાલી આશ્રમના કામ નથી કરાવતો। હવે આ શરૂઆત કરી છે અમે, 31 અમે ચાલુ કર્યું છે કે વ્યસનના પૂતળા હળગાવી દઈએ। આ તો 31 એક શરૂઆત કરી છે, આ યજ્ઞ કરવાનો ચાલુ કર્યો છે। પણ આગળ આગળ જોજો,
જ્યાં જ્યાં આવા સમય આવશે ને ત્યાં જે કરવા જેવું લાગે તે બધું અમે કરશું. આ સેનાને મજબૂત બનાવશું. જ્યાં ધર્મ પરિવર્તન આવશે ત્યાં અટકાવશું. જ્યાં કંઈ પણ થશે આ સેના ભવિષ્યમાં તમને ઊભી રહેલી જોવા મળશે. કોઈ સંગઠન કરે કે ન કરે, નવનાથ ધામની દાદા કી સેના આ બધા કાર્યો કરશે. પણ એવા કાર્યો કરવા માટે તમારા છોકરાઓની જરૂર છે. એટલે જે તમારા છોકરાઓ અહીંયા આવતા હોય ને પેલા સેનામાં નહીં આવીને એમ ઘરમાં બેસી રહેતા હોય ને એને બહાર કાઢો. બધાને ખેંચી ખેંચીને બહાર કાઢો અને બહાર કાઢીને કહેવું કે જાઓ આશ્રમમાં જાઓ ને સેનામાં જોડાવો ને ધર્મના કાર્ય કરો, ધર્મ જાગૃતિના કાર્ય કરો. પણ મેં તો ઘણા જોયા છે આપણા છોકરા એવા બની જાય ને એના કરતાં છોકરી વ્યવસ્થિત લાગે. એવા પેલા કુમળા પેલા બનાવી દીધા તમે. એ આપણી સામે આવીને વાત કરે ને તો આપણને એમ લાગે કે ખરેખર આ છોકરો છે. માનો પેલો પાલો પકડીને ફર્યા કરે, પછી લગ્ન થાય તો બૈરીનો પાલો પકડી. આવા તમે પેદા કર્યા, ઉંદર છાપ પોયરા પેદા કર્યા છે. મારું તો એવું માનવું કે નાથપંથી હોય ને એ નાથપંથી વાઘ જેવો પેદા થવો જોઈએ. એવા છોકરા આપો, એવા છોકરા આપો કે જે ધર્મ માટે ઊભા રહે. અને દાદા કી સેના બનાવી જ એટલા માટે છે. હજુ દાદા કી સેના એની પણ ખબર નહીં હશે. બધાને એમ જ હશે કે દાદાએ તો આ કામ કરવા માટે બનાવી, સારું છે. પણ તમને ખબર કાં છે કે તમારી પાછળ મારે કરવાનું શું છે? હું ધીમે ધીમે કરીશ. પહેલાં તમને પીપરમીટ આપું છું, પછી ધીમે ધીમે આઈસ્ક્રીમ આપીશ, પછી કરશો. એક વાર બધાને પ્રેમથી અંદર લઈ લઉં છું. મારું કામ બહુ ધીમું છે. પેલો કહે ને કે વાઘ બે ડગલા પાછળ ને પછી વાર કરે, બસ આ જ છે અમારું. એટલે હજુ બી તમારા છોકરા હોય તો દાદા કી સેનામાં એને જોડો. બહુ કામ કરવાનું છે. અને એ જો કામ થશે તો હું માનીશ કે આપણે કંઈ આપણા ધર્મ માટે કર્યું છે, આપણે આપણા ગુરુ માટે કર્યું છે, આપણે આપણા જીવન માટે કર્યું છે. जहां गुरु गोविंद सिंह ने पूरे समुदाय जितने भी गुरु थे वो शहीद हुए, अपने परिवार शहीद हुए, और वहां जाके आज भी वो धर्म अटल है. तो हमारी संस्कृति में से निकला हुआ एक समुदाय, एक धर्म, जिनके भीतर में आज भी धर्म प्रेम की अग्नि जागृत है, हम में भी है, तो हमें उसे जगा के रखनी है. 356वीं जन्म जयंती गुरु गोविंद सिंह जी की आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाता है. आज योगानुयोग ये तिथि आई है तो हमने गुरु दरबार में गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से धर्म रक्षा और धर्म जागरण के संस्कार हमने प्राप्त किए. तो ये भी युग पुरुष है. भगवान ही ऐसे जन्म लेके नए नए रूप में हमारे सामने आते हैं, और जहाँ परमेश्वर साक्षात रूप लेके आते हैं वहाँ हमें उनको समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है. इसलिए आज के दिन यहाँ कीर्तन हो रहा था. यही कीर्तन से धर्म की शुरुआत हुई थी, और ये कीर्तन करते करते माला और मंजीरा लेते 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 किरपाल और भाला हाथ में लिया और धर्म की रक्षा हुई. तो आज यहाँ जो कीर्तन किया गया, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, ये कीर्तन गुरु गोविंद सिंह जी के स्मरण में आज का कीर्तन है. वहां गुरुद्वारा में होता है, यहाँ गुरु दरबार में आज हुआ. तो हम सब दो हाथ जोड़ते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर में भी धर्म प्रेम की अग्नि जले, धर्म रक्षा का जुनून हमें भी प्राप्त हो, और हमने जो जीवन लिया है ये जीवन राष्ट्र के नाम, धर्म के नाम, और जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया है उनके नाम हमारा जीवन हो, हमारे गुरु के नाम हमारा जीवन हो. हम सब में धर्म रक्षा और धर्म जागरण की भावना बढ़े, ऐसी प्रार्थना गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में आज हम करते हैं. 25 बार गुरु मंत्र.
गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च हड़बंगा कानीफा मछेंद्र राज चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि संज्ञा भूम्या बभुहर नवनाथ सितः जय जय मछेंद्र समर्थ जय जय मछेंद्र समर्थ जय जय मछेंद्र समर्थ सानेनाथ महाराज की जय छोटे दादा की जय। हम सब गुरु गोविंद जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं और उनके मान में जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं यहाँ से बोलूँगा, जो बोले सो निहाल, आप बोलेंगे सत श्री अकाल। ऐसा कहते हुए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। આજનો ભંડારો પ્રજોતભાઈ કરણિક વાપી તરફથી છે। મહાપ્રસાદમાં દાળ ભાત, બટાકા રીંગણનું મસાલાવાળું શાક, રોટલી, બુંદીના લાડુ, સમોસા એમના પરિવાર તરફથી આજનો ભંડારો છે। તો એમના માટે પણ પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાનની કૃપા ભરપૂર રહે, એમના આશીર્વાદ રહે અને સદાને માટે આવા કાર્યની અંદર તન મન ધનથી એમનો પરિવાર જોડાયેલો રહે એવી એમના માટે પ્રાર્થના કરું છું। ત્યાર પછી બીજી વાત, શાકંભરી નવરાત્ર 30 ડિસેમ્બર 2022 એટલે કાલથી અને 6 જાન્યુઆરી શુક્રવારે એની પૂર્ણાહુતિ થાય છે। કાલથી નવરાત્રિની શરૂઆત અને 6 જાન્યુઆરીએ એની પૂર્ણાહુતિ છે શુક્રવારે। તો 5 તારીખનો જે ગુરુવાર છે એ મહાભંડારો છે શાકંભરીનો। તમારે જે પણ કંઈ શાકભાજી આપવી હોય તે બુધવાર 4 જાન્યુઆરી બુધવારે સવારે 7 થી રાતના 9 સુધી અહીંયા જમા કરી દેવાની। આર્થિક યોગદાન બીતા તમે આપી શકો, પણ તે દિવસનો ભંડારો શાકંભરી માતાનો મહાભંડારો છે। તો જેણે પણ ભંડારાનો લાભ લેવા આવવું હોય તે બધા આવી શકે છે। ગુરુવાર જે રીતે આપણો સમય છે એ રીતે ચાલુ રહેશે। તો આ રીતે શાકંભરી નવરાત્રમાં કાલથી અનુષ્ઠાન બધા જેણે કરવું હોય તે કરે અને 6 તારીખે તમારે પૂર્ણાહુતિ કરવાની, પણ મુખ્ય ભંડારો 5 તારીખનો છે જાન્યુઆરી ગુરુવારનો, એ દરેક જણાએ ધ્યાન પર રાખવું। આજનો ગુરુવાર ગુરુ ગોવિંદ સિંહના સ્મરણમાં આપણે અર્પણ કરીએ છીએ। અહીંયા ઉધનાથી ભજન મંડળી આવી છે, દર વર્ષે વર્ષના છેલ્લા ગુરુવારે આવે છે। 16-17 कितने साल हो गए हमको? हाँ 19, आज 19 साल हुए और 19 साल से भजन की धारा अविरत बह रही है, कीर्तन अविरत हो रहा है और साल के अंतिम गुरुवार पर भजन संध्या होती है और भजन के साथ आनंद और उमंग के साथ गुरुवार पूरा होता है और नए गुरुवार से हम वापस शुरू करते हैं। तो આજે લોકો 19 વર્ષથી આવે છે, આજે 19મું વર્ષ છે અને સરસ રીતે ભજન ગાય છે। આટલી આટલી ઉંમર છે પણ એમનો ઉત્સાહ જો તમે જુઓ તો આપણને એમ થાય કે આ ઉત્સાહ ફક્ત અને ફક્ત ગુરુ કૃપા ही કેવલમ આ કીર્તનથી પેદા થયો છે। અને આખું દત્ત નવનાથ મંડળ છે અમારું અને દર વર્ષે ગાય છે। તો આજે પણ એ લોકો અહીંયા પ્રવચનની પૂર્ણાહુતિ નિમિત્તે અહીંયા ભજન એક ભજન ગાશે અને ભજન ગવાય એટલે એ લોકોએ તો મારું સન્માન કર્યું છે, પણ મારે એમને પ્રસાદ આપવાનો હોય। दर वर्षे आज 19 साल मैंने 18 बार प्रसाद दिया होगा आपको, तो आज 19 बार भी आपको प्रसाद मिलेगा। तो यहाँ અહીંયાથી મારે એમને પ્રસાદ આપવાનો અને એ લોકો પ્રસાદ લઈ જાય, પોતાના ઘરે પૂજામાં મૂકે અને पुढच्या वर्षी लवकर या, अगले साल आप जल्दी वापस आएंगे। मगर हर साल की तरह ये बार भी अंत में कीर्तन और कीर्तन के साथ हमारे गुरुवार की हम पूर्णाहुति करेंगे। और जहाँ आपका कीर्तन चालू रहे उसी समय पे एक एक भक्त यहाँ आएंगे, यहाँ से आपको प्रसादिक भेंट दी जाएगी। हरे दर्शन दो सानेनाथ दादा, अखियाँ प्यासी रे
हे दर्शन दो सानेनाथ दादा अखिया प्यासी रे दर्शन दो साने दादा अखिया प्यासी रे दर्शन दो साने दात दादा अखिया प्यासी रे दर्शन दो सानेनाथ 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 दादा अखिया प्यासी रे मैं मंदिर की ज्योति जगा दो मैं मंदिर की ज्योति जगा दो मैं घाट घाट बसी रे दर्शन दो सानेनाथ दादा अखिया प्यासी 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 रे मंदिर मंदिर मूर्त तेरी मंदिर मंदिर मूरख तेरी फिर भी नदी से सूरत तेरी फिर भी नज़ील सूरख तेरे युगे बीते नाई मिलन की पूर्ण की मासी रे दर्शन दो सानेनाथ दादा अखिया प्यासी 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 रे द्वार दया का जब तू खोले दर्शन का तू खोसी पंचम सुर में गुंगो बोले बंदन सुर में तुम हो बोले अंधा देखे लगदा चल कर पहुँचे काशी रे